Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। Our today's topic is kinetic energy, unit number 6, 9th class physics. Kinetic energy. Objective: to learn the basic principles of kinetic energy. The energy with an object possesses by virtue of its motion is known as kinetic energy. Let's consider a smooth round ball. If we push the ball a little, it will be set in motion. The rolling ball, by virtue of its motion, is capable of doing work. Here it hits an object, such as a small wooden block, pushing the object a bit beyond its initial position. The energy of this moving ball is its kinetic energy. An object's kinetic energy depends on both mass and speed. Let's go back to our ball. This time, we'll place the ball on an inclined plane. If we place the ball at the top of the incline and let it go, it will quickly roll down, hitting the wooden block with greater energy than before and still pushing it forward. But note the new position of the object. This time, it has been moved farther than before. Now, let's increase the inclination of the plane and return the wooden block to its original position. Place the ball at the top of the incline, letting it roll freely downhill. The ball will hit the wooden block with even greater force, pushing it much farther. Again, note the new position of the wooden block, which was pushed much farther because of the ball's increased speed. This helps us see that the kinetic energy of an object will increase as the speed increases. Let's slightly modify our experiment. Take a larger ball and let it roll down the inclined plane. The ball will hit the wooden block with a great deal of force, pushing it much farther. From this, we can see that the kinetic energy also increases with an increase in the object's mass. If we apply an equation to what we have seen, we would say that kinetic energy is equal to half the mass multiplied by the square of the speed. This can also be written as kinetic energy is equal to half mv squared, where m is the mass of the object and v is the velocity. Kinetic energy is measured in joules. When the mass of the moving object is increased 2 times, its kinetic energy will also be doubled.
When the velocity of the object is increased twofold, then its kinetic energy will increase 4 times. Summary. Moving objects possess kinetic energy by which they can do work. The kinetic energy of an object depends upon both its mass and velocity. Okay students, have you seen in the video about the kinetic energy एंड दी एनर्जी? ठीक है, एनर्जी आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, क्या था, और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। अब उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, दैट व्हाट इज द एनर्जी। अब बेसिकली एनर्जी आपके पास क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज नोन एज द एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो वर्क डन कर सके, या उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत है कि वो वर्क डन कर सके, तो उस कैपेसिटी को, उस कैपेबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड एनर्जी। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो फूड देता है। हमने पढ़ाई करनी है, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने कोई भी फिजिकल वर्क करना है, वट एवर द वर्क वी आर डूइंग इन अ डेली लाइफ, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब नो मोर क्रिएटेड ओनली कन्वर्टेड, यानी जो एनर्जी होती है ये खुद से क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है ना हम इसको बना सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हम कोई भी फूड खा रहे हैं, हमारे आपके पास फूड हमारे जो है वो स्टमक में जाएगा, बॉडी में जाएगा, वो आपके पास खुद को खुद एक आपके पास हम नहीं उसको करे, वो जो फूड के अंदर एक केमिकल एनर्जी है वो खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर? आपके पास किसी भी एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की भी आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो आपके पास वो कन्वर्ट करेगी उस फूड एनर्जी को। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स जैसे बता रहे हैं, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। अब बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू मोशन, कोई भी बॉडी ड्यूरिंग द मोशन, जब वो मूव कर रही है, मूवमेंट में है, ठीक है, उस वक्त जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और आज का टॉपिक हमारा यही है, we will discuss in detail about the kinetic energy। ठीक है, अब ये देखें आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट नजर आ रही है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी की आगे डिफरेंट आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तमाम आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ये तमाम चीज़ें मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना। इसी तरह केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वो तमाम एनर्जीज हैं जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होती हैं, यानी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर इंशाल्लाह। ठीक है, now the kinetic energy is basically the energy that ऑब्जेक्ट्स possess due to their motion। जैसे कि आपको वीडियो में भी आपने देखा और यहाँ पे भी डेफिनेशन में भी ये कि किसी भी बॉडी, जब भी कोई बॉडी मूव करती है ड्यूरिंग द मोशन, जो उस बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी पोजेस कर रही होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जाहिर है एक बॉडी जब मूव कर रही है उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ना। अब उस बॉडी के रास्ते में कोई भी अगर चीज आ जाती है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, अ कार इज मूविंग, अब बाइक इज मूविंग, ठीक है, आप अब वो मोशन में है, मोशन के दौरान देखो उसके अंदर एनर्जी है तो वो मूव कर रही है ना, तो ड्यूरिंग द मोशन वो जो एनर्जी यूज कर रही है, उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के ई एंड इट्स फार्मूला इज 1/2 mv², यानी हाफ mv²। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, ये किस तरह से डिराइव होगा। एंड द मास इज द मास ऑफ द बॉडी, मूविंग बॉडी, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखे, जैसे आपने वीडियो में देखा था कि उन्होंने आपको मास को चेंज करके और वेलोसिटी को चेंज करके दोनों को बताया था कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देखिए, m and kinetic energy are directly proportional. As we increases the mass of the body, the kinetic energy also
इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी भी अगर मास को हम डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर मास को हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस 4 टाइम्स। मास को अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक है। बट विद द केस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के लिए ये है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, वेलोसिटी को क्या करें, डबल करें, यानी 2, तो 2 का स्क्वायर है 4, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करें वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी 9 टाइम्स, राइट। सो आपके पास ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि बाय increasing the mass and velocity the kinetic energy also increases, और वो किस रेशियो से इंक्रीज हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। by doubling, या if we increase the mass 2 times the kinetic energy also increases 2 times, and when we increase the velocity 2 times the kinetic energy increases 4 times, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड द एनर्जी यूनिट, द यूनिट ऑफ द एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ जूल्स, ठीक है। जूल्स भी बोलते हैं, जाउल भी बोलते हैं। तो जे इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास उसकी यूनिट है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, कि किस तरह से ये फार्मूला जो है वो डिराइव हुआ है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो हम उसको विंड कहेंगे। वी कैन यूज अ विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस, अब विंड की मदद से हम जैसे विंड मिल्स हैं उनको हम लोग मूव करवा सकते हैं, सेलिंग बोट्स हैं। इट मीन्स कि जो हवा है वो जब मूव कर रही है तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से विंड मिल्स जो है वो रन कर रही है, ड्राइव हो रही है। सेलिंग बोट्स जो है वो मूव कर रही हैं, उनको वो पुश कर रही है। तो वो जो एनर्जी है जिसकी वजह से बॉडी जो है करिए, तो इट मींस दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट। मूविंग वाटर इन द वाटर, अब आपके पास पानी अगर मूव कर रहा है उसके ऊपर वाटर लॉग है और वाटर लॉग भी आपके पास उसके साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मूवमेंट की वजह से कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है ड्यूरिंग द मोशन, जो भी उसके अंदर एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है, द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सून एज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप। जब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाती है तो वो स्टॉप हो जाती है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास बाइक आप चला रहे हो, बाइक में आपने जो है ना वो पेट्रोल डलवाया है, ठीक है, लेट्स सपोज 1 लीटर। अब जब तक वो पेट्रोल जो है वो काइनेटिक एनर्जी, वो एक एनर्जी है ना। अब जैसे देखिए आपका पेट खाली होगा, अल्टीमेटली आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, यू आर वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। जैसे ही आप खाना खाओगे आपको ये एनर्जी मिलेगी, आप स्ट्रांगली और बहुत एक्टिवली अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे 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 आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, वो फूड, जैसे ही वो फूड एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है, आपकी एक्टिविटी स्लो डाउन शुरू हो जाती है और एक टाइम आ जाता है आप बिल्कुल डल हो जाते हैं एंड यू विल ले डाउन ऑन द बेड, और आप कहते हो बस अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब सारी की सारी एनर्जी यूज हो गई है। सो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त तक बॉडी को मूव, जब बॉडी उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी बॉडी मोशन में रहेगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी यूज अप हो जाएगी बॉडी विल स्टॉप, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने ये कहा है इसकी डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन में आपके देखिए, यू हैव टू कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव करिए विद वेलोसिटी v के साथ, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, एज द बॉडी स्टॉप्स बाय अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से बॉडी जो है वो स्टॉप होगी। द बॉडी possesses kinetic energy and is capable of to do the work against the opposing force F until all of its kinetic energy is used up। अब देखिए आपने बॉल को रोल करवाया है ग्राउंड के ऊपर, अब कुछ देर बाद उसकी मोशन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। स्लो होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज होना शुरू हो गई है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसको स्टॉप करवाना शुरू कर दिया, लेकिन बॉडी के अंदर अभी भी इतनी एनर्जी है कि वो उस अपोजिंग फोर्स को अपोज करके मूव कर रही है। फिर क्या तो स्लो डाउन होते 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 यानी उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो यूज करती 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 आगे एक वक्त आता है कि वो स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब है कि अब उसके अंदर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ड्यूरिंग द मोशन वो अब यूज अप हो गई है और बॉडी जो है वो स्टॉप हो गई है।
तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को होप्स समझ आ गया होगा जी। अब हम जब इसकी डेरिवेशन करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब हमने देखे यहाँ पे कहा कि इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने कह दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कह देंगे v के इक्वल, v स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमने कहा कि आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप इट्स मोशन, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a। अब देखें, अब हमने कहा कि F इज इक्वल टू फोर्स जो होता है वो ma की इक्वल होती है। ठीक है, फोर्स किसकी इक्वल होता है? ma की इक्वल। ठीक है, यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू f बाई एम, f डिवाइडेड बाय m। ठीक है ना, अब यहाँ पे वो यूज करें माइनस एफ बाई एम। माइनस एफ बाई एम का मतलब क्यों है? क्योंकि बॉडी तो मूव करी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसकी एक्सेलरेशन मूव प्रोड्यूस हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉरी, लेकिन जो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई हम ए की जगह लिखेंगे माइनस एफ ओवर एम, माइनस एफ बाय एम इंटू एस। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 2f s डिवाइडेड बाय m। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी जो माइनस माइनस है बोथ साइड्स पे इट विल बी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2f s डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। m को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, 2fs इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। fs को भी हम इधर रहने देते हैं और ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताएं fs, हमने ये अभी शुरू में हमने ये पढ़ा था ना, अभी हमने शुरू में जब हमने स्टार्ट की थी हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसे ही है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट S fs होता है। हम इस fs की जगह क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी, यानी fs जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो fs की जगह हम क्या लिख देंगे? ke लिख देंगे। आपके पास ये सोल्यूशन आ रहा है ना, fs इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हम इधर fs की जगह क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि fs ke की इक्वल भी है, तो 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी पे क्या करती है? डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बाय इंक्रीजिंग द mass 2 times, kinetic energy also increases 2 times, and by increasing the velocity 2 times, the kinetic energy increases 4 times, and so on। इसी तरह से आपके पास ये रेशियो जो है वो इस तरह से चलती रहेगी। राइट बेटा? Now if you have any question regarding this, so kindly you can ask me. Okay, then thank you so much. Have a nice day. Stay blessed. Allah Hafiz to all of you.